हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे ओप्स गायनी इन क्विक मोड. ओके, सो व्हाट इज गेंस वाले is PID staging. So first this PID staging. Stage 1 is the simple salpingitis. 2 is it is with peritonitis and purulent discharge history. Number 3, it should be tubal occlusions या फिर ट्यूबो ovarian complex. So 3 has T. Number 4 is rupture tubo ovarian abscess. Number 5 is tubercular salpingitis. Okay. Prince Villa White. This is some कोई female ladies doctor थी who created diabetes management in pregnancy. 1A is only with diet, 1B is controlled with diabetes mellitus. पहले यूज होता था, now it is not used. NTD prophylaxis. NTD prophylaxis in pregnancy, procedure, delivery, trauma, abruptio. Okay, so pregnancy loss, spontaneous abortion, ectopic pregnancy, HMOL, fetal death, elective abortions. In procedures it can be used at amniocentesis, CVS, fetal blood sampling. Expectant management of placenta previa. Before 3 weeks 37 weeks it can be used. Should be no vaginal bleeding. Mother should be hemodynamically stable. Fetal should be normal in USG. Conduct of expectant management. Conduct of expectant management is a corticosteroid for fetal lung maturity. Tocolytics NTD. If mother is Rh negative and unsensitized, then NTD can be given. Okay. Stall-worthy sign. What is this? When fetus is pressing the placenta against its head, that will cause decrease in heart rate. Next one. So what is placental sign? Placental sign till 12 weeks of gestation, corresponding period के टाइम पर थोड़ा spotting होगा. So little bit spotting is till 12 week is okay. That is known as the placental sign, and it happens till the fusion of decidual parietalis and decapsularis. This is the cyclical bleeding. Fetal head delivery in breech. What are the methods? Can be remembered by BMPW. So B is the Burn-Marshall, M is the Morrissey's Milley, P is Piper forceps, Neville forceps, and W is Vigaut Martin. Endometriosis. It's mnemonic. The drug used is a gold gap. Now G is GnRH, O is OCP, L is letrozole, D is danazole, another G. This is gastrinone. A is antiprogesterone and P is progesterone. So endometriosis has both progesterone and anti-progesterone, both drugs. Estrogen is not the part of management in endometriosis. Now, what is this submucous fibroid? It is diagnosed by ultrasound, maybe by saline infusion sonography,
HSP, but do not with CT and colposcopy. ये दोनों चीज़ यूज़ नहीं होते हैं. Next one is the gonorrhea. Gonorrhea is the infection in female that may cause labia swelling. Vaginal discharge is positive here. Itching is okay, can be seen. Intermenstrual bleeding, it can cause intermenstrual bleeding and proctitis. Okay. Without pregnancy के ही uterus prolapse हो रही है. So what we have to do? So uterus is prolapsing. So Shirodkar and Khanna साहब को बुलाना पड़ेगा. So Shirodkar and Khanna sling operation has to be done in uterus prolapse. This is abdominal surgery. But if a female is less than 40 years, further grill operation has to be done. More than 60, Lee 40 and colpoglysis can be done. What is urinary stress incontinence? So there is three grade 1, 2 and 3. So severe stress, moderate and mild. Severe stress से अगर लीक होती है जैसे coughing, sneezing, then that is the grade 1. Moderate stress से लीक होती है जैसे कि fast walking, stair पे चढ़ रहा है तब चढ़ रही है तो लीक हो रही है, that is the 2. अगर mild stress से लीक हो रही है जैसे कि just standing, खड़े होने से ही लीक हो रही है urinary, तो that is the grade 3. Okay. And what are the type? ये तो ग्रेड था, ये तो अब नाउ टाइप 1, 2, 3. सो लॉस ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल दैट इज टाइप 1. नंबर 2 में क्या होता है? यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी 2. नंबर 3 में क्या? इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी. vulva carcinoma, now it has 1A, 1B, 2, 3 and 4. It should be very simple. 1A is just local white excisions. 1B partial vulvulectomy and ipsilateral inguinofemoral lymph node dissection. 2 is a 2 condition, 2 to 4 centimeter and more than 4 centimeter. 2 to 4 centimeter total vulvectomy and bilateral groin lymph node dissection. If it is purely अगर more than 4 centimeter है, radical vulvectomy, bilateral lymphadenectomy, pelvic lymph node dissection. Number 3 is what? Number 3 is सर्जरी इज मेगा वोल्टेज रेडियोथेरेपी. सर्जरी भी इसमें करना है, कीमो भी करना है नाउ एंड रेडियोथेरेपी. ऑल 3 हैज टू बी डन इन 3 मीन्स 3 थिंग्स यू हैव टू डू. ओके नाउ 4th इज द ओके कीमो, रेडियो, लोकल एक्सीजन्स, यहाँ भी ये तीनों कर सकते हैं. फिम एंड इप्सिलेटरल इलियोफेमोरल लिम्फ नोड इफ पॉजिटिव contralateral node also removed. Femoral lymph node. Okay. What is the resumption of meiosis 1? When it is when it happened, due to when, how? Due to LH. Preeclampsia, that is the increased resistance due to afferent arteriole. That it causes increase resistant to afferent arteriole. It causes decreased GFR, decrease renal perfusions, increase plasma uric acid, serum creatinine. What is the risk? Increased risk of tubal pregnancy.
प्रायर ट्यूबर सर्जरी, ट्यूब का सर्जरी पहले हुआ है, PID, इनफर्टिलिटी एंड इंडोमेट्रियोसिस, ये सारे ट्यूबुलर प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं। So subdivision of decidua. So what is this portion? This is decidua paritalis. What is just इसके नीचे ये क्या है? Decidua capsularis. This is what? This is basalis. और ये तो myometrium है. Okay. Gardwell Malloy pelvis. कार्डवेल मेलोय पेल्विस, तो पेल्विस का जो क्लासिफिकेशन कार्डवेल मेलोय इन्होंने बताया था, तो वी कैन याद क्या कर सकते हैं, गैप, ठीक है, इसी गैप से बेबी डिलीवर हो रही है, सो वी रिमेंबर गैप। सो गायनिकोइड, एंड्रोइड, एंथ्रोपोइड एंड प्लेटिपोइड, ये चारों हैं। ओके, एंड्रॉइड फ़ोन की बात खूब ज़्यादा यूज़ होती है। सो दिस इज़ बट दिस विद द डिफ़िकल्ट डिलीवरी इज़ इन एंड्रॉइड। एंगेजिंग डायमीटर इस या तो ट्रांसवर्स होगा या ऑब्लिक होगा, एंड डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट इज़ कॉमन हियर। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट इज़ कॉमन हियर। Prominent scale spine is seen here. Friends, I am just revising fast without any explanation. Okay, breast feeding अगर नहीं है तो हम menstruation वैसे 4th वीक में स्टार्ट हो सकती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर कंटिन्यूस है, नॉर्मल है, तो मेंस्ट्रुएशन थोड़ा डिले हो जाएगा, 7th से 9 वीक में स्टार्ट हो सकती है। सो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग में अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है नॉर्मल, ठीक है ना, तो 7 to 9 वीक्स लगेंगे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने में नॉर्मली। ओके, नाउ राइट, degeneration of fibroid. So something is degeneration है, most common it is in second trimester, right? Degeneration fibroid, it is painful, leukocytosis and increased ESR होगी। Now what is torsion of fibroid? This is the acute pain only. Torsion of fibroid is acute pain only, no leukocytosis, no increased ESR. Pregnancy sites, it can be abdominal, ovarian and cervical. अगर abdominal है, study Ford criteria हम यूज़ करेंगे, D is अब डबल D, study form criteria। ovarian है, स्पीजलबर्ग क्राइटेरिया, ovarian स्पीजलबर्ग। अगर सर्वाइकल है, रूबिन क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे। But now what is this pelvic tuberculosis? Pelvic tuberculosis, it is always secondary, most common spread by hematogenous। पहले लंग में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद हेमेटोजेनस रूट से पेल्विक ऑर्गन में आएगी। मोस्ट कॉमन इज fallopian tube। टाइप ऑफ पेल्विक, नाउ नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ पेल्विक pelvis चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, मैक्सिमम बर्थ ट्रॉमा इज कौन करेगा? अच्छा, कौन सा पेल्विस है जिसमें कि मैक्सिमम बर्थ ट्रॉमा होगा? तो गायनिकोइड। मिनिमम बर्थ ट्रॉमा कॉजिंग इज एंड्रॉइड, मिनिमम बर्थ ट्रॉमा एंड्रॉइड में होता है, मैक्सिमम बर्थ ट्रॉमा गायनिकोइड में होगा। Now digital rectal examination, where you can do
patient is virgin, you can do it, we can do it. Painful vaginal examination, still we can do it. Carcinoma cervix, we can do it. Rectal symptoms is present, still we can do it. Difference between rectocele and interocele, we can do it. Okay, next one. Neonatal hypoglycemia कब बोलेंगे? when blood glucose is less than 40 mg per deciliter. Okay, आगे देखते हैं. Krukenberg tumor या ovarian carcinoma, and this is the seeding from usually gastrointestinal tumor, gallbladder tumor, pancreatic tumor, breast cancer, endometrial carcinoma. ठीक है, यह कहाँ से आता है? क्रूकेनबर्ग, PUBG से आता है. सो P इस पैनक्रियाटिक, P इस ब्रेस्ट कार्सिनोमा, 1G यहाँ पर GI, सेकेंड G हो गया है गैल ब्लैडर, इस इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से. यहाँ से इन सब से आ सकता है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर. क्रूकेनबर्ग क्या है? ओवेरियन कार्सिनोमा. Now the cryo surgery is for carcinoma. It is done for cervical ectopy, condylomata acuminata, leukoplakia to arrest bleeding in carcinoma cervix. No anesthesia required. क्या बेनिफिट है? एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है. No secondary hemorrhage. Very less carcinoma stenosis. Cannot use in severe dysplasia. Worst prognosis in eclampsia is antepartum. अगर BP 200 से ज़्यादा है सिस्टोलिक में, फीवर इफ इट मोर देन 102, फिट्स आ रहे हैं मोर देन 10, एंड जॉन्डिस है, प्रोटीनूरिया 5 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा है, ओलिगोरिया लेस देन 400 ml 24 आवर. तो ये सारे क्या करेंगे कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस ऑफ प्री एक्लेम्पसिया. Anemia in pregnancy, it can be mild, moderate, mild, moderate, severe, very severe. So mild, normal is more than 11, 10 to 10.9 is the mild, 7 to 9.9 is moderate, less than 7 is severe, less than 4 is very very severe. Okay, very severe. ब्रेस्ट फीडिंग अगर बिल्कुल कंप्लाइंट है तो यूज़ कॉन्ट्रासेप्शंस आफ्टर 3 मंथ. ब्रेस्ट फीडिंग अगर लेस नॉर्मल ठीक नहीं है या नहीं ब्रेस्ट फीडिंग तो 3 वीक में कॉन्ट्रासेप्शन चालू कर देना चाहिए. सेमेन एनालिसिस 2 ml होना चाहिए, 2 मिलियन पर ml. Okay, 7.2 to 7.8 is pH, 14% morphology normal होना चाहिए, 32% should be progressive, viability 75% or more should be okay. पर एजुकुलेट कम से कम मतलब 40 मिलियन या इससे ज़्यादा स्पर्म इज नॉर्मल. Okay. Modified biophysical scoring has NST plus more than 1 pocket AFI measuring 2 centimeter in 2 perpendicular plane. यह चीज़ इसमें इंक्लूड होती है. सो मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोरिंग NST है इसमें, एंड more than 1 pocket AFI measuring 2 centimeter into perpendicular plane. Okay, that is the modified biophysical scoring.
blood flow intervillous space at term is 500 to 600 ml. वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंटरविलस स्पेस में 150 ही होती है, इंटरविलस स्पेस में 150, एंड ब्लड फ्लो हाउ मच इट इज़ 500 to 600 ml पर मिनट. ओके. प्लाज्मा प्रोजेस्टेरॉन इन ल्यूटल फेज इज व्हाट 5 to 15 नैनोग्राम पर ml. ओके. Bro presentation. This is the bro presentation. Is a 13.5 to 14 centimeter. What is A? A is submentobrigmatic. A is here is mental, तो submentobrigmatic, यहाँ ब्रिग्मा है, submentobrigmatic is A. Okay. What is B? Suboccipitobrigmatic. B यहाँ occipital है, यहाँ नीचे suboccipitobrigmatic. Okay. What is C? Occipitofrontal. C is occipito, यहाँ से frontal में जा रही है. What is D? It is mentovertex. This is B. D is mentovertex. इसको हम ब्रो प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. HSG in tubercular salpingitis, it can show various figure: tobacco pouch, beaded lead pipe and honeycombing, यह दिख सकती है. Okay. Fetal death in utero. Something is the Robert sign, Spalding and Ball sign. Robert sign पहले आएगा, 12 घंटे में ही आएगा. Gas in great vessel. Spalding sign is skull bone overlap after 7 days. Ball sign is hyperextension, flexion of spine, 3 to 4 weeks of death. स्टीन-लिवेंथान साइन तो सिंड्रोम, दिस इज पीसीओडी के लिए होती है. E2/E1 इज डिक्रीज. तो यहाँ सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन कुछ ऐसा है, दैट इज डिक्रीज. FSH/LH यह लो होगा. फास्टिंग ग्लूकोज एंड फास्टिंग इंसुलिन इज 4.5. ट्राइग्लिसराइड इज इंक्रीज्ड. TFT abnormal is hypothyroidism. एनोबुलेशन. और पीसीओडी में और क्या क्या होते हैं? एनोबुलेशन, एलिगोमेनोरिया, मेनोरिया भी हो सकती है. हाइपर एंड्रोगोनिज्म्स, यह दिखाता है हिर्सुटिज्म्स एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाता है. और पीसीओस इन यूएसजी में तो दिखेगा. टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम. सो दिस इज़ एक्चुअली, वैसे तो यह मेल है, इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, बट फिनोटाइपिकली फीमेल, साइकोलॉजिकली फीमेल. ब्रेस्ट इज़ वेल डेवलप्ड, वेजाइना शॉर्ट एंड ब्लाइंड. एक्सिलरी हेयर हो सकती है, प्यूबिक हेयर नहीं. एक्सिलरी हेयर नहीं है, प्यूबिक हेयर नहीं है. प्राइमरी एमिनोरिया इसमें होती है, यस. गोनेट सेक्रेट्स एंटी मुलेरियन हार्मोन. इसमें क्या है? लेडिक सेल का काम ओके है. सर्टोरी सेल इज ओके. सेक्स क्रोमोसोम इसमें नेगेटिव. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? गोनेट बायोप्सी से. ओके. मीन हेड टू बॉडी डिलीवरी या 24 सेकेंड में हो जाना चाहिए. पहले हेड डिलीवर होता है यूजुअली, उसके बाद बॉडी डिलीवर होता है. 24 सेकेंड में हो जाना चाहिए. अगर 60 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है, दैट इज शोल्डर डिस्टोसिया. जॉनसन फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर फीटल
वेट डिटर्मिनेशन, फीटल वेट डिटर्मिनेशन कैसे, यह देखना यही है कि बेबी जो है स्कीयल स्पाइन से ऊपर है कि नीचे। अगर ऊपर है वी आर -12, क्या यूटेरस का हाइट -12 इंटू 155, यह ग्राम में आ जाएगा। हाइट -11, या अगर इसका मुंडी नीचे है स्कल तो हाइट -11 इंटू 155 ग्राम। ओके। पेन इन endometriosis is due to depth. Deep cervical arrest is caused by android pelvis, yes. Epidural anesthesia, yes. And uteral inertia, uterus inertia. Transverse line itself do not cause arrest. Vaginal epithelium is derived from US, यानी कि यूरोजेनेटल साइनस, एंडोडर्म या फिर यूरोजेनेटल साइनस। हार्मोनल चेंज यानी मेनोपॉज, मतलब E2/E1 लेस देन 1, FSH ज़्यादा हो जाएगा मोर देन 40, LH 50 to 100। Area Stilla reaction is uterine ectopic pregnancy, gestational trophoblastic disease, endometriosis. तो व्हाट इज दिस? एरियाज स्टिला रिएक्शन में यूटरस इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है या हाइपर सेक्रेशन करने लग जाती है। तो यह किस चीज़ में, किस कंडीशन में ज़्यादा होगा? इफ़ द पेशेंट हैज़ यूटेराइन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें हो सकती है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ में हो सकती है। इंडोमेट्रियोसिस में हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी, इट कैन uterine pregnancy versus abdominal। uterine pregnancy Braxton Hicks contraction इसमें होता है। it is the spontaneous contraction, irregular, infrequent and sporadic, पेनलेस होता है, पेशेंट को यह पता नहीं चलता है। प्रेशर बिलो 8 mm Hg के होता है। ओके, यूटरस कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है। अगर यूटरस को अगर रब करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। इट डू नॉट काज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। नाउ फोनिक या फिर फीटल शफल किसे बोलते हैं? रश ऑफ ब्लड थ्रू अम्बलाइकल आर्टरीज, दैट इज नोन एज फोनिक या फीटल शफल। दिस इज सिंक्रोनस विथ फीटल हार्ट साउंड। ओके, मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन, यह कहाँ बड़ा होता है, कहाँ घटा होता है? तो दो चीज़ें याद रखेंगे, डाउन सिंड्रोम में घट जाएगा, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में यह चीज़ कम हो जाएगी। क्लिमैक्टेरिक फेज ऑफ एडजस्टमेंट इन ओवरी, या जस्ट मेनोपॉज से 2-3 साल पहले होता है एंड 2-5 साल मेनोपॉज के बाद होता है। ओके, फीटल पेपरेसिस या कंप्रेसस किसे बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दिखता है। एक फीटस मर जाता है, सिकुड़ जाता है एंड मम्मीफाइड हो जाती है। नेक्स्ट वन, प्रीटर्म लेबर प्रेडिक्टर, इट इज क्लिनिकल, बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल। अगर पहले कभी हुआ हो मल्टीपल प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तब यह हो सकता है प्रीटर्म लेबर। सिम्टम्स ऑफ प्रीटर्म लेबर आना चाहिए। यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन 4 per hour, Bishop scoring more than 4, cervical length is less than 25 mm, fetal iliofibronectin इसमें हो सकता है, प्रेजेंट होगी, एंड IL-6, 8, TNF अल्फा ये चीज़ बढ़ा होगा। बायोकेमिकल में यह तीनों चीज़ बढ़ा होगा। IUFD, स्किन पीलिंग एट
ठीक है। इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ यानी मैचुरेशन इज द स्किन पीलिंग, यह कब दिखता है? 12 से 24 घंटे में। रिस्क फैक्टर ऑफ स्कार रप्चर इज मोर देन 2 प्रीवियस सीजन सेक्शन हो गया है। इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल लेस देन 24 मंथ तब भी हो सकता है। इंड्यूस्ड लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर तब भी हो सकता है। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर हो सकता है। प्रीवियस सिंगल लेयर यूट्राइन क्लोजर तब भी हो सकता है। बिफोर प्यूबर्टी सर्विक्स प्लस कॉर्पस, सर्विक्स इस टू कॉर्पस का रेशियो कितना होता है? 2:1, 2:1, यानी कि सर्विक्स का लेंथ ज़्यादा होता है, कॉर्पस का लेंथ बहुत ही कम होता है। ओके। नॉर्मल लेबर टाइम अगर प्राइमरी है तो यूजली 8 घंटा लेटेंट फेज, मल्टी है तो लेटेंट फेज 4 घंटा रहेगा यूजली। प्राइमरी में अगर प्रोलॉन्ग लेबर किसको बोलेंगे? अगर यह 20 घंटे से ऊपर से चला गया है। मल्टाई ग्रेविडा अगर आया है तो 14 आवर, इससे ज़्यादा हो गया तो प्रोलॉन्ग लेबर बोलेंगे। प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्यों होता है? इनसफिशिएंट यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेस्ड फोंटेनेले यानी डिहाइड्रेशन हो गया है, साइक्लिक ब्लीडिंग इन प्रेग्नेंट ओल्ड टिल 12 वीक्स, इसे प्लासेंटल साइन भी बोलते हैं, हम देख चुके हैं। सोर्स ऑफ स्टेम सेल, इट कैन बी एम्ब्रोयो, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी ले सकते हैं क्योंकि मेसेनकाइमल सेल उसमें होती है। SOB 9.5 होती है। सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्माटिक यह है 9.5 एंड SOF सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर होगा। मेंटो वर्टेक्स 14 होता है, लार्जेस्ट होता है। सेम थिंग, प्रेजेंटेशन कैन बी फेस ब्रो वर्सेस वर्टेक्स। तो फेस में SMV सब मेंटो वर्टिकल होती है, सब मेंटो आ गया तो फेस ही होगा। एंड जहाँ भी ऑक्सीपिटो आ गया, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ये वर्टेक्स होगी। और सब मेंटो को क्या बोलते हैं? फेस में सब मेंटो होगा, ओके, सब मेंटो ब्रिग्मेटिक। HRT, so hormone replacement therapy, fibroid concern, फाइब्रॉइड HRT जब भी हम देते हैं तो पेशेंट में फाइब्रॉइड का चांसेस बढ़ सकता है। इट इज़ इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओके। यह क्या कर सकता है? हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट है तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। और लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिजीज में HRT यह नहीं देना है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देना है। ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप पार्शियल मोल, तो पार्शियल मोल में ट्रिप्लॉइड 90% होती है, डिप्लॉइड 10% होती है। कंप्लीट मोल कैरियोटाइप इज 46XX, यह पूरा पैटर्नल होती है। कल्पोस्कोपिक नो रोल इन यूटेराइन लीशन, ठीक है। यह रूबिन कैनुला दिखाया रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन SHG recording. Type of breach in primary is frank. A commonest type of PP traumatic neuritis is foot drop, या पालसी होगा। PP मतलब पेरिफेरल ऐसा कुछ, ओके। एक्सटर्नल सिफालिक वर्जन 65% सक्सेसफुल रेट होती है, 65 सक्सेसफुल रेट। होमन साइन, पेन इन काफ ऑन डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, दैट इज नोन एज होमन साइन। पेन इन काफ ऑन डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, या DVT में होता है। कार्बन कैनुला 4 से 12 mm होती है साइज, एंड कैन बी रिजिड, कैन बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वाला लेस ट्रोमेटिक होती है।
4 number means 4 mm diameter. So thank you.